چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. ہم آپ ہی کے سہارے یہاں بیٹھے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب بولیں گی تو یہ ریاست بولے گا, یہ ظلم ختم ہوگا. آپ ہمارے لیے بولیں. ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ معجزہ اب ہمارے ساتھ ہو. اب ہمارے گھروں میں مریم کی وجہ سے چراغاں ہو, اب ہمارے گھر مریم کی وجہ سے آباد ہو, اب ہمارے گھروں میں روشنی مریم کی وجہ سے آئے, اب ہماری آنکھوں کا نور مریم کی وجہ سے آئے. ہم جب آباد ہو تو ہمیں مریم آباد کرے. بلوچستان میں مریم کا نعرہ گونجے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیاروں کو بازیاب کریں. آپ بتاؤ. سمیرا بیٹھ جاؤ نیچے. آپ بتاؤ. سب سے پہلے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس وقت ہماری اس تکلیف میں شامل ہوئے ہیں. ہم ایک ہفتے سے یہاں پر لاوارثوں کی طرح بیٹھے ہیں, بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کوئی حکومتی نمائندہ آ کر ہم سے ملو. یہاں پر ان ماؤں سے پوچھو جو اپنے بیٹوں کا نام لینے سے پہلے ان کی آنسویں نکلتی ہیں, جو کھڑے ہو کر بے ہوش ہوتی ہیں. Government don't want any missing person in the country. تو ہم ان سے یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں. ڈاکٹر دین محمد 12 سالوں سے لاپتہ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میرے فادر ہیں. میرے فادر ایک سرکاری ملازم ہیں جن کو سرکاری ہاسپٹل کے اندر سے رات کے 1 بجے اٹھا کر لے کر گئے. میرے ابو ایک سرکاری یہاں کی حکومتیں سب ہمیں کہتے ہیں کہ یا ہم کوشش کر رہے ہیں یا ہم بے بس ہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. تو ابھی ہم یہاں پر دوبارہ آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں کہ ایک دفعہ ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کی حکومت میں بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے پیارے ہمیں لوٹ سکتے ہیں یا نہیں. ہم 1 ہفتے سے پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ ہم نے لگایا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم اپیل کر رہے ہیں. آرمی چیف, صدر پاکستان, وزیر اعظم عمران خان صاحب, یہ مائیں آئی ہیں, ایک دفعہ ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھیں. ایک دفعہ تو پوچھیں کہ آپ بلوچستان کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں. ایک دفعہ پوچھیں کہ جو مائیں اپنی جو ہے کمزور ہڈیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ یہاں تک کیوں آئے ہیں. کیا وہ پاگل مائیں ہیں؟ کیا یہ پاگل بچیاں ہیں جو روڈوں پر بیٹھی ہیں؟ نہیں, ان کو صرف اپنے پیاروں کا درد, ان کی تکلیف گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے. یہ مائیں بلوچستان کی ترقی کے لیے نہیں نکلی ہیں, یہ بلوچستان میں روزگار کے لیے نہیں نکلی ہیں, یہ مائیں نوکریوں کے لیے نہیں نکلی ہیں. یہ بیٹیاں جو ہے بلوچستان میں اچھی سڑکوں کے لیے اور مکان اور بجلی کے لیے نہیں نکلی ہیں. یہ صرف اپنے بابا, اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلی ہے. جو ان کا بنیادی حق ہے, جو حق ان کو اس ملک کے آئین اور قانون نے دیا ہے, جو حق ان کو اس ملک کے آئین اور قانون نے دیا ہے کہ جو شہری اس ملک کے خلاف جاتا ہے اس کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے آتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا جا رہا ہے. ہم سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں, ہمارا ایک سیدھا سادہ مطالبہ ہے, اگر ہمارے پیارے مجرم ہیں, اس ملک کے مطابق, اس ملک کے قانون کے مطابق مجرم ہیں, تو ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئیں. اب ہی ان کو جو ہے پھانسی دے دیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں ہماری زندگی دے دیں. ہماری گھر کی خوشیاں جو ہے 12 سالوں سے لاپتہ ہیں. صرف میرے بابا لاپتہ نہیں ہے, میرے والدہ کی جوانی لاپتہ ہو گئی ہے, ہماری بچپن لاپتہ ہو گئی ہے, ہماری خوشیاں, ہمارے گھروں کی چین, ہمارا سکون
सब लापता हो गया है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक तलाश बन के रह गई है, एक तलाश जो कि 12 सालों से जारी है, एक तलाश एक बेटी जो ये तक नहीं जानती है कि वो अपने बाबा को जिंदों में शुमार करे या मर्दों में शुमार करे, एक तलाश जो कि एक बेटी अभी तक नहीं जानती है कि वो खुद को जो है यतीम समझे या कि अभी तक उस बाप का इंतजार करे उसके लौटने का, एक तलाश एक बेटी का जो कि ये नहीं जानती है कि उसकी वालिदा जो है अभी तक हाफ विडो है या कंप्लीट विडो है। ये रवा रखा जा रहा है हमारे साथ। फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान में लोग नाराज बलोच हैं, फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। आप बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के वकीलों को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के तालिब इल्म और उस्तादों को लापता करते हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है? हमारी एक आसान सी गुजारिश है, एक सिंपल मुतालबा कि अगर हमारे प्यारों ने कुछ किया है तो उनको अदालत के मुताबिक सजा दें। हमें नहीं पता इन 12 सालों में हमारे प्यारों का क्या हाल है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस अजियत, जिस ज़हनी अजियत, जिस कर्ब में हम मुब्तला है उसका जो है बयान में अल्फाजों में नहीं कर सकती, वो अल्फाजों में मुमकिन ही नहीं है। इन 12 सालों में हमारा खुशियों से कभी वास्ता ही नहीं हुआ है। हम दर दर भटक रहे हैं, कभी इस जज के सामने झोली फैला रहे हैं, कभी उस हुकूमती नुमाइंदे के सामने भीख मांग रहे हैं अपने प्यारों की, कभी उनके सामने जो है उनके सामने हाथ फैला रहे हैं। ये हमारी जिंदगी है क्या? इसलिए हमें पैदा किया गया है। अब मेरे साथ मेरे बाबा का होना मेरा बुनियादी हक है। क्यों इस हक को मुझसे छीना गया है? मुझे किस नाकर्दा जुर्म की सजा दिया जा रहा है? इस माँ को किस नाकर्दा जुर्म की सजा दी जा रही है? हम सबको हमारे गुनाह क्या है? अगर हमारे लोग लापता हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में हम सब अजियतें सह रहे हैं। हमारा एक आखिरी मुतालबा है कि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं या फिर जो जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं, साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब, आर्मी चीफ, आप आए, हमसे मिले, हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा करें। आप जब तक हमसे हमारे प्यारों की बाजियाबी का वादा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं लौटेंगे, क्योंकि हमारे लिए अब जिंदगी और कुछ नहीं रह गया है। हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद हमारे प्यारों का लौटना है और ये हम उम्मीद करते हैं इस दफा इस्लामाबाद से हम अपने प्यारों को उठाकर ही साथ लेकर जाएंगे। हम यही उम्मीद करके यहाँ तक आए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि हमें ना उम्मीद करके यहाँ से ना भेजा जाए। बहुत शुक्रिया। ये आपने जो तस्वीर पकड़ी हुई है इसमें कोई पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ, ये कौन है? ये इनका बेटा है, सही सिक्योरिटी लेवीज एहलकार है जो है 8 सालों से लापता है। इनकी जो है मंगेतर 8 सालों से इनके लिए इंतजार कर रही है। अभी इनकी मंगेतर को फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं कि हमारी बेटी को तलाक दें, हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कराएंगे। एक लड़की 8 सालों से अपने मंगेतर के लिए इंतजार कर रही है। कहाँ से उठाया था इनको? कहाँ? मस्तूंग से। अच्छा, मस्तूंग से। आप में से और कुछ कोई कहना चाहता है? जी बेटा बताओ, बोलो, दे दें उनको माइक। सबसे पहले मैं मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रोडों पे मैं घूम चुकी हूँ। बेटा आपका कौन मिसिंग है? मेरा भाई राशिद हुसैन। क्या उम्र है उनकी? 23। कहाँ से उठाया उन्हें? दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से। पिक्चर में 2020 को क्वेटा के जलसे में आपसे मिलने आई थी, ये पिक्चर लेकर आई थी। तो अब 2021
یہ پکچر میں واپس آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. کیا میرا بھی زندگی محلب اور سمی کی طرح گزرے گا؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی؟ کیا میں اپنے چاچا کے لیے ہر ہمیشہ مظاہرے کرتی رہوں گی؟ کیا میں اپنی ماں کی گودی میں نہیں سو سکتی؟ کیا میں ایک رات اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ کیا میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتی؟ کیا یہ میری زندگی میں نہیں لکھی؟ میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ وعدہ کیا تھا یہ وعدہ پورا کریں. ہم سے ملنے آئیں, ہماری لوگوں کو بازیاب کریں. اگر نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں, کیونکہ 6 دن سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے, لیکن افسوس وہ وہاں تک نہیں آ سکا. کل ہم اسلام آباد پریس کلب سے ڈی چوک پیدل مارچ کرتے ہیں اور ہمیں مارا گیا. میرے بھائی پہ اگر کوئی جرم ہے تو عدالت میں لے کر آئے. آپ اپنی 400 سالوں میں کیوں رکھا ہے انہیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ہماری خوشیاں یہی ہے, ہماری چین یہی ہے, ہماری سکون یہی ہے. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے. یہ مائیں جو رات کو سردیوں میں کانپ رہے تھے لیکن پھر بھی اپنا احتجاج جاری رکھا, آج پھر سے یہ مائیں یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ان کے دل میں وہ درد ہے وہ ہم نہیں سکتے. بس میں اب لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو منظر عام پر لے کر آئے, اور عمران خان سے یہی کہتی ہوں کہ وہ آئے اپنا وعدہ پورا کرے. میڈم ذاکر مجید کی والدہ جون 2009 مستم پڑنگ آباد آتی وہ تو ارا ساتھی ہے کو ساتھی کے مسور بارد کے ذاکر وہ لاپتہ کرے ذاکر 12 سال ہماری مریم نواز نے شکریہ ادا کی وہ کن ہماری کنی سر کی یا منظر ما دیتا عمران خان ہماری یہ اندر مریم نواز یونیورسٹی شکریہ ادا کی وہ ننا کلنا دا فسکیاری لمت سر کل دکھٹین دردتین اڑتا ماں کا فس کنا ماں ولی کو مسنگی وہ 12 سال مری کو 10 کنا فر اور بعد مہربانی کر مدد دے کے کنا ماری کنی کشفے تے سر کی کنی شکریہ. میڈم ماں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے آسرے پہ آئی ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے اور ہمارے پیاروں کے بازیابی میں اپنا کردار ادا کرو گے اور ہمیں ذہنی زندگی بھر کی اذیت سے نجات دلاؤ گے. یہ ڈی ایس او آزاد کا انفارمیشن اس کی بہن بھی کچھ کہنے سے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے دکھ درد میں یہاں پر ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ایک لاچار بہن جس کے بھائی کو 5 سال پورے ہو رہے ہیں لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے, وہ کس حال میں ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں. میں جب بھی گھر میں پہنچتی ہوں تو میری امی پوچھتی ہیں کہ شبیر کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں. میں حکومت سے یہی سوال کرتی ہوں, کیا میری امی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھے؟ جب میری امی میرے بھائی کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے کپڑوں کو دیکھتی ہیں, ان کی کتابوں کو دیکھتی ہیں, روتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو نہ پڑھایا ہوتا اچھا ہوتا, کیوں میرے ساتھ ہوتا, وہ کوئی چڑھا ہوا ہوتا لیکن میرے سامنے ہوتا, وہ کسی باغ میں بس گھر ہوتا تو وہ میرے سامنے ہوتا, لیکن میں نے اپنے بیٹے کو پڑھا کر بہت بڑی غلطی کی. میں حکومت سے یہی پوچھتی ہوں, کیا ہمارے بھائیوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ میرے بھائی کا جرم
पूछना था कि वो एक स्टूडेंट था। मैं इमरान खान साहब से यही पूछती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में इसी प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज लिखा है? मेरे छोटे मीराज की जिंदगी में इसी कैंपों में एहतजाज लिखा है? जब मैं घर से निकलती हूँ तो मीराज मुझे कहती है, अम्मा आज हम कैंप नहीं जाएंगे, मुझे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहना है। तो मैं इसे देखकर वहीं पर टूट जाती हूँ। मैं बिल्कुल बिखर चुकी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को देखकर खुद को संभालती हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे ये कहती हूँ कि हम अपने घर में खुशी से रहेंगे, एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हमें 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप किस लिए आए हैं। हमने पहले तो ना कभी कोयटा देखी, ना कभी इस्लामाबाद, ना कभी कराची। मेरे भाई के लापता होने के बाद मैं दर बदर भटक रही हूँ। लोग मेरे पीछे हजारों बातें करते हैं, कहते हैं कि ये एक अकेली औरत यहाँ वहाँ भटक रही है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह सड़कों पे भटकने का। मैं उनसे यही कहती हूँ कि खुदारा मेरे भाई को करे, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। 2016 से पहले किसी ने मुझे इन सड़कों पे देखा था? नहीं। 2016 में जब मेरा भाई लापता हुआ तो ये एक ऐसा दर्द है कि घर में बैठने भी नहीं देता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बाप बाप मेरे भाइयों को कितने ताने मारेंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना है, मुझे इन सब से लड़ना है, मुझे शबीर को वापस लाना है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ, एक बार आप लोग खुद आर्मी चीफ, वजीर आजम वहाँ अपने टॉर्चर सेलों में जाकर शबीर की मासूम आंखों को देखें। क्या वो गुनहगार हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर हमारे सामने उन्हें सजा दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह सालों से उन्हें अजियत में रखना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई खुशी का मौका आता है तो लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। हमें आए हुए यहाँ 1 हफ्ता पूरा हुआ है, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब से यही सवाल करती हूँ, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते? इस अम्मी मैरियम आपको नजर नहीं आते? ये बूढ़ी माए आपको नजर नहीं आते? ये छोटा मीराज आपको नजर नहीं आता? खुदारा हमें इस अजियत से निकाल दे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप भी हमारी फरियाद सुने, आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमारे प्यारों को लाएं। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। मैं मेरगुल मरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मरी को 14 सितंबर 2015 को हमारे घर सरियाब रोड से रात को 40 बंदे 10 गाड़ियों से हमारा गेट तोड़ के मेरे वालिद सो रहे थे, उठा के ले गए हैं। मेरे वालिद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और 60 साल के हैं। वो कोई जवान नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। हमने FIR भी काटा है और कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है? मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर चली गई। मैं 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं अपना गम भूल के यहाँ आई हूँ। मैं कोयटा भी गई हूँ, कराची भी गई हूँ और 40 घंटे सफर करके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। यहाँ कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे तालीम पर असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे रोडों पर बड़े हो रहे हैं। लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे प्रेस क्लब में बैठे होते हैं। हम भी सम्मी की तरह यही पूछते हैं कि क्या हम यतीम हैं या अपने अब्बू का इंतजार करें। मैं आखिर में तमाम हायर अथॉरिटी से यही अपील करूंगी कि मेरे वालिद मेरगुल मरी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे मिलने आए। मेरा नाम हानिल गुल बलोच है। जैसे कि कहते हैं कि बलूचिस्तान जो साइल और वसाइल से माला माल है
मैं उसी खत्ते की बदनसीब बेटी हूँ जैसे कि इन माओ बेटियों की तरह। कहते हैं कि हमारे लोग, मैं मुख्तसर तक बोलूंगी क्योंकि टाइम शायद आपके पास ज्यादा ना हो, हमारे लोग उठाए जा चुके हैं। मैं किसी की मंगेतर हूँ। जिस तरह कहते हैं कि बलोच की बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं वो वाहिद मंगेतर हूँ जो अपने मंगेतर के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हूँ। जो टॉर्चर सेल मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे, मैंने भी देखी है वो टॉर्चर सेल, मुझे भी उठा के लेके गए थे 3 मत, मैं भी उस टॉर्चर सेल में रह के आई हूँ। आपको क्यों ले गए थे उठा के? बलोच होने का सजा तो मिलेगा, क्योंकि मैं बलोच, कोई जुर्म हमने नहीं किया था, हम कोई मुजरिम नहीं थे। हमने बिला वजह ही हमें उठा के लेके गए थे, कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि नसीम को वहाँ पे मारते रहे तो नसीम का यही बात था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जब छोड़ा गया, मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की, मैंने कमीशन में भी केस किया, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी केस भेजा, और एहतजाजें धरने कर के मैं थक गई। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन हमें पूरे हो गए हैं, हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और हम इस्लामाबाद में इसलिए आए हैं और इस तवक्को और इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे सुना जाएगा, हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा, क्योंकि मेरे जो मंगेतर है यहाँ पे हर लोग जो बैठा हुआ है उनकी आंखें अश्कबार है अपने प्यारों के लिए, और आप सबसे उम्मीद लगा के यहाँ पे आई है कि आप लोग उनकी सुनेंगे, उन लोगों को बाजियाब करेंगे, और बाजियाब करने में हम मदद करेंगे। और हमारी इमरान खान से और हमारे कमर जावेद बाजवा से यही अपील है, हमारे लोगों को जो आप लोगों ने उठाए हैं उन्हें बाजियाब करें। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म है तो कोर्ट कचहरियां आपके अपने हैं, लाए उन्हें पेश करें, हमारे वकील है, सजा जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई, साबित हो गई तो आप भी चौराहे में लाके उन्हें फांसी दें, हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह पाबंद सरासर रखना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान में हर घर जल रहा है, बलोचिस्तान में हर माँ जल रहा है, हर बेटी जल रहा है, हर भाई जल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं और हम इंसाफ के लिए आए। शुक्रिया। मैडम, मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ, सारे फैमिलीज़ ने बात की, अम्मा बैठी हुई है, उसने बात नहीं की, वो उर्दू में बात नहीं कर सकती है, रो रही है, और कल भी अपने बेटे का जिक्र यहाँ किया था और यहाँ गिर के बेहोश हो गई थी। जान ज़ैद मोहम्मद हसनी उसका नाम है, 5 साल हो रहा है उसको क्वेटा से उठाया गया है, लेकिन अब तक बाज़ियाब नहीं हुआ। तो हम तंजीमी सतह पर मैडम आपके मशकूर है कि आपने हमारे दर्द को महसूस की, हमारे यहाँ पर आया और फर्दन एक लवाकिन की आपने दर्द सुनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी तंजीम मिसिंग पर्सन के बाजियाबी के हवाले से अपनी किरदार अदा करेगा। हम जिस तरह सब लोगों ने जिक्र किया कि 7 दिनों से आए हुए, हम ये उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें सुना जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 7 दिन हमें हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग रात में सर्दी में भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मिसिंग होता है उसका पूरा फैमिली होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी करब, अजियत और बहुत से मुश्किलात का शिकार होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ आपके सामने कुछ वाक़यात भी आए, कुछ ऐसे यहाँ पे शादीशुदा ख़वातीन है, वो ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि हम बेवा हो चुके हैं, कि हमारा शौहर ज़िंदा है। और इसके अलावा मैडम एक और चीज़ भी है कि कुछ ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, एक फैमिली का 8 साल से वो मिसिंग है, 5 साल के कि आप लोग इन गमज़दा घरानों की आप लोग आवाज़ बनोगे, और इस आवाज़ को आप लोग ऐवानों में और मुख्तलिफ फोरम्स पे आप लोग उठाओगे, ताकि जो जिबरी गुमशुदगियों का मसला है वो हल हो। हमारा मुतालिबा भी आईनी है, हम चाहते हैं कि जिन पे इल्ज़ाम है आप उनको अदालत में पेश कर दो, जो बेकसूर है उनको फौरी तौर पर रिहा कर दो, और जो इस दुनिया में नहीं है वो रियासत की इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि उनके ख़ानदान को बताए कि वो इस दुनिया में नहीं है। और हम
आवाज से बस यहीं से आप यहीं से बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने अल्फाज में ये बयान कर सकूं कि मेरे एहसासात इस वक्त इनकी दुख भरी कहानियाँ सुन के क्या हैं, लेकिन हम सब में से जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं, सब रिश्तों में बंधे हैं, सब माएँ बहनें बेटियाँ बाप बेटे हैं। हम सबको एहसास है कि ये रिश्ते कितने बड़े होते हैं। मैं सिर्फ इनकी बात सुन के ये सोच रही हूँ कि जब आपका प्यारा कोई चला जाता है, अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, आपकी नज़रों के सामने हो जाता है, आप उसको मिट्टी के नीचे दफना कर आते हैं, कब्र में दफना के आते हैं, रहती जिंदगी तक कभी उसकी याद इंसान को नहीं भूलती, जीने नहीं देती, उसकी तकलीफ इंसान के दिल में रह जाती है। लेकिन उस इंसान का गम, मुझे नहीं पता कि वो क्या गम होगा जो रोज सुबह उठकर अपने प्यारों का इंतजार शुरू कर देते हैं और रात को सोते तक दरवाजा देखते रहते हैं, आंखें रास्ता तकती रहती हैं। और जरा अपने ऊपर इसको तारी करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो, ये मैं अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा है या नहीं जिंदा। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसास हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज गुजरती है। और कई सालों से, 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता हैं। आप सोचें कि कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज इसी कर्ब से गुजरते हैं। ये इज्जत वाले लोग हैं, अपने घरों में इज्जत से रहने वाले लोग हैं, और ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे इस सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियां भी सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियां जो है इंसान की, वो उसके फ़र्ज से बड़ी होती हैं? फ़र्ज जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बिठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फ़र्ज है, रियासत का फ़र्ज है, रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है। आपका फ़र्ज है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते, आप इनके प्यारों को बाज़ेआब नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, एजेंसीज की मजबूरियां हो सकती हैं। मैं मुल्क की एजेंसीज से भी ये कहती हूँ कि आपकी भी माएँ बहनें बेटियां आपकी औलादें हैं, आपके वालिदैन हैं, खुदा के वास्ते आप उनको सिर्फ ये बता दें कि उनके प्यारे मर गए या जिंदा हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, चुप करेंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे, लेकिन उनका रोज का जो एक वो क़यामत उनके दिल पे गुजरती है, वो तो उसको तो करार आएगा। और इमरान खान साहब को भी ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का शायद रास्ता ना हो। और ये बच्चियां कह रही हैं, मुझे बता रही हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ आकर बैठी हैं। आपने एजेंसीज को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये 22 करोड़ अवाम जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप इनके सर पे हाथ तो रख सकते हैं। या आपको सिर्फ कहने के लिए यही बातें मिली हैं कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा? ये लाशें नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं, लेकिन जीते जागते लोग हैं। आए इनकी बात सुने, इनके सर पे हाथ रखें। मेरा ख्याल है कि वो इसी बात से उनको तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम किसी ने आके उनकी फरियाद को सुना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम ना आप खुद ये इस किस्म के बयानात जारी किया करें,
کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں. نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں, ڈی چوک میں آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کا دل ہے, آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے, ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آپ کا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, آج میں کسی وفاقی وزیر کا جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی, وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی, پنجابی, کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو, مظلوم ہوتا ہے, اس کا کوئی صوبہ. مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں, اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پوچھ بہت بڑی ہے. حکمران تو آپ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو ان کا دور حکومت یاد رکھیں اور پھر اپنی طرف ایک نظر دوڑائیں اور شرم کریں. میم یہ بتائیے گا کہ مسنگ پرسن جو کمیشن تھا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, جوڈیشری کا اس میں کیا رول ہے, اور کیا کوئی اس معاملے پہ کوئی لیگل کوئی ان کو اسسٹنٹ. ابھی آپ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جب کمیشن بنا, کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں آپ نے ان کو مانا ہی نہیں, تو آپ جتنے چاہے کمیشنز بنا دیں. یہ کمیشنز جو ہے نا یہ آئی واش ہوتے ہیں بھائی. ان کا یہ ہوتا ہے ٹائم بائی کرنے کا طریقہ. ان کا حل ہو سکتا ہے, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں, آپ ان کو بتائیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے اس نے یہ قصور کیا ہے. لیکن اگر کوئی چلا گیا ان کو اطلاع تو کریں. یہ ان کا بیسک حق ہے, یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیارا ہے بھی نہیں, ہے بھی یا چلا گیا دنیا سے. حضرت عمر فاروق کی یہ مثالیں دیتے ہیں تو گزشتہ دور حکومت آپ کا تھا, ابھی یہ بتا رہے تھے 2015 میں, 2016 میں, اس سے پہلے 2009 کا بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ لاپتہ افراد ہوئے. اس وقت حکومت نے کیوں اقدام نہیں اٹھایا؟ ایک چیز, اس وقت عمران خان اظہار یکجہتی کے لیے آتے تھے, آج آپ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. کیا صرف اظہار یکجہتی سے ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیں, میں اس وقت سوائے اظہار یکجہتی کے اور کچھ کر سکتی ہوں, اور میں صرف ان کی بات سن سکتی ہوں. ان کو یہ احساس دلا سکتی ہوں کہ یہ بلوچستان سے ہیں, لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں. بلوچستان سے اگر یہ ہیں تو یہ ملک کی بیٹیاں ہیں, ملک کی مائیں ہیں. اور پنجاب سے کے جو لوگ ہیں یا باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بلوچستان جو ہے وہ زخمی صوبہ ہے, اس کے شکایات جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن جب آپ کا کوئی صوبہ ناراض ہوتا ہے, اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کی جینوئن شکایتیں ہوتی ہیں, تو آپ ان کو دھکا دے کر پرے نہیں کرتے, آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اقتدار کے بعد, میں اپنی بات کر رہی ہوں, اپنی جماعت کی بھی بات کر رہی ہوں, اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے ہیں, آپ بے حس ہو جاتے ہیں, آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے, تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا اچھا ہے. یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہاں مسنگ پرسن کے کیمپ میں آئے تھے, 2010 میں آئے تھے, اور انہوں نے 50 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا نواز شریف کی فیملیوں کے لیے کہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں تھا, ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد یہاں چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے, تو آمنہ مسعود انجوا جو ہے ان کو یہاں پہ دہلی پولیس نے کشیدہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا تھا, لیکن میاں صاحب کی انٹرونشن پہ رات کو وہ مقدمہ خارج ہو گیا تھا. آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہے, اس ملک کے اقتدار کی گدی پہ بٹھاتا ہے, تو آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ ان لوگوں کے مسائل کا حل نکل سکے؟ وہ پالیسی میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ اول تو یہ نہیں ہونا چاہیے
ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए. हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरियां हैं, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलविस है, तो उसका एक तरीका कार है. उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है किधर. कम से कम देखिए, कम से कम जो भी उनका जहां भी जो भी स्टेटस है उनका, वो जिंदा हैं या मर हैं या टॉर्चर सेल्स में हैं या कहीं भी हैं, कम से कम उनके घर वालों को बता दें ताकि उनको चैन आ जाए. और फिर दूसरी बात ये कि अदालतें हैं इस मुल्क में. अगर आप शो ऑफ हैंड्स का और ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं. इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले. अब आपको सेनेट के इलेक्शन जब आपने चोरी किया उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया. अब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे या आपके लोग चले जाएंगे तो आप उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो इनके मुकदमा भी ले जाएं अदालतों में. अदालतें बनी हुई हैं, दहशतगर्दी के लिए भी बनी हुई हैं, हर चीज के लिए बनी हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं. आप लेकर जाएं, लोगों को पता चले कि वाकई कसूरवार हैं या आपसे गलती हुई है. और मैं ये भी बता दूं, मुझे ये भी पता चला है, मुझे खुद बलोचिस्तान से ये पता चला है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं या ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और गलती हो गई है, और वो या तो बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कुछ भी हो गए. इनको बता दो भाई, बस मैं इतना चाहती हूँ. अच्छा मैम, एक तिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रास्ता आज आप हुकूमत को दिखा रही हैं, ये आपके वक्त भी ये ऑप्शंस खुले हुए थे, तो आपके रास्ते में रुकावट क्या चीज थी? मैं मामलात को नहीं जानती. मैं ये जरूर समझती हूँ क्योंकि मैंने दूर से देखा है, मजबूरियां हैं, होती हैं, लेकिन फर्ज से बड़ी मजबूरी नहीं होती. मैंने जो बात अभी की मैं दोबारा करूंगी कि अगर कोई मजबूरी है, अगर इसमें कोई चीज भी आड़े आती है तो इनको इत्ला करें, इनसे बात करें. और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट का रास्ता है, आए और इनके सर पे हाथ रखें. नहीं आ सकते अपने किसी वजीर को भेजें, नहीं भेज सकते तो कम से कम इनह्यूमन स्टेटमेंट्स इशू ना करें जिनसे लोगों के दिल जो है वो छलनी हो जाए. हुक्मरान हर चीज नहीं कर सकते, मुझे अंदाजा है, लेकिन कम से कम सर पे हाथ रख सकते हैं. आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है. क्या हो सकी? नहीं, अभी उन्होंने बताया, अभी उन्होंने आपके सामने बताया कि आमना साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया. ये तो कर सकते हैं ना. देखिए, हुकूमत का बेसिक फर्ज जो है ना, बेसिक फर्ज वो अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है. अब मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ लोग बेसिक अपनी जो नीड्स हैं, खाना पीना, अद्वियात, इलाज, जब उसकी दहाइयाँ दे रहे हों और यहाँ आकर हर तबका, क्या वो मिसिंग पर्सन्स हैं या वो सरकारी मुलाजमीन हैं या वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, हर कोई आज सरापा एहतजाज है और लोगों की जिंदगियां अजाब हो गई हैं. तो ये मैं तो ये समझती हूँ कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या अल्फाज अदा करूँ कि हर बंदा आज का सड़कों पे, लेकिन आपके अंदर इतना भी एहसास नहीं है कि आप उनकी बात सुने. आप उल्टा उनको मारते हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, उनको दुश्मन बनाकर पेश करते हैं. ये बहुत शर्म का मुकाम है. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. मैं इजाजत है मुझे. अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलात आसान करे और मेरी दुआ है कि आपको कम से कम पता चल जाए कि आपके प्यार. मेरा बच्चा तनख्वाह भी नहीं, इसका बच्चा दे रहे. एक मेरा बच्चा मोटर्स हो गया, गायब हो जाए, कराची हो गया. इसके बारे में आप क्या अपना वादा पूरा करो.
Justice! Justice!